Hello class 9 students, welcome to today's online class. In today's online class, we are going to learn physics. By the way, I am Shrey Vaishnav and I am your physics teacher. In science of class 9, we are having 5 chapters of physics. Chapter number 8 is motion. Chapter number 9 is force and laws of motion. Chapter number 10 is gravitation. Chapter number 11 is work and energy, and chapter number 12, which is sound. So these are the things in science subject of class 9 which we are going to go through from the part of physics. So which are the chapters? Motion, then force and laws of motion, then gravitation, then work and energy, and the last one will be sound. Chapter number 8, chapter number 9, 10, 11 and 12. These 5 chapters are there from the part of science as physics. So today we are going to start chapter number 8, motion. So let us see what are the basic concept of it and what is there which we are going to study in motion. So before we start chapter number 8, motion, let us understand why you are going to study physics as a separate part. What is physics? Actually, physics is the study of surrounding, study of science of surrounding. Means in physics you are going to study those things which are around you and the phenomena is going around you. So a question arises that from where this surrounding starts and till what this surrounding is. So here we can say that physics is that part of science which is going to deal with the study of things going around us. That thing might be just the thing nearby you, or it might be far away from you, like the another galaxy. So that's why first thing which you notice around you is motion. Like for example, whenever you see sun at 7 o'clock, it is at the east. When you see at 1 o'clock or 12 o'clock, it is at the top of your head. And when you see it at the evening at 5 o'clock or 5:30, you see that it is at the west. So you can see the change in position of sun. You can notice the first thing is motion. So what is motion first of all? How you can define that something is in motion? So for that we should write first of all the definition of it, and the definition of it will be an object is said to be in motion. An object is said to be in motion when it changes its position with respect to time. When it changes its position with respect to time, or we can say when it changes its position with respect to surrounding with the passage of time. With the passage of time. So you should note this down. It's a very important term. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि क्या होता है मोशन. व्हाट इज मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन
when it changes its position with respect to surrounding with the passage of time. It means that, take an example of myself. I'm standing here, मैं यहाँ पे अभी हूँ, ये मेरी पोजीशन है अभी, समय बीता लाइक 2 सेकंड या 3 सेकंड, और मैं अपने आसपास की चीजों के कंपैरिजन में अब मूव हो गया, यहां पे आ गया, पहले पॉइंट ए में था, अब पॉइंट बी में आ गया. सो देन if it is happening, then only you will understand, then only you will notice that there is a motion in me. कोई ना कोई चेंज इन पोजीशन हुआ है. हाँ सर, कैसे हुआ? क्योंकि आपने मुझे कंपेयर किया अपने आसपास की सराउंडिंग से, इस ग्रीन बोर्ड से, इस दीवार से. यू मस्ट हैव नोटिस कि मैं पहले यहां खड़ा था, समय बीता, 2 सेकंड बीतने के बाद अब मैं यहां पे हो गया, ये सारी चीजें यहीं रही, मैं यहां पे रह गया. क्या सराउंडिंग का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट. सराउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट इमेजिन दैट कि ये अभी आप मुझे यूं देख रहे हैं और ये पूरा का पूरा रूम मेरे साथ, ये दीवार, ये ग्रीन बोर्ड, सारी की सारी चीजें, ये कैमरा, ये सारी की सारी चीजें कुछ इधर मूव हो जाए, you will not notice that there was a motion. Why? Because surrounding also didn't move. क्योंकि सराउंडिंग भी वही था, मैं भी वही था. आप मुझे मेरे सराउंडिंग से कंपेयर करते हैं, मतलब मेरे आसपास की चीजों से. अगर मेरी आसपास की चीजें मेरे से साथ में मूव हो जाए और आप मुझे वहीं से देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि कोई मोशन नहीं हुआ. इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. मगर अभी के लिए व्हाट विल बी द मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. एक ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कि वो मोशन में है. कब? जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे अपने आसपास की चीजों के कंपैरिजन में विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम. समय बीतने के अनुसार. समय तो बीतेगा, यस. कुछ मोशन हो रहा है तो कुछ समय भी लगेगा. So this is it set. This is the example. Let's see an example of motion. Like for example, let us see कुछ प्रकार के मोशन देख लेते हैं. Like for example, let us see that a car running on a road. होगा एक कार जो मूव कर रही है रोड में. सो यहां पे क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट क्या है? कार है. समय बीता और सराउंडिंग क्या है? वो रोड है. रोड वहीं रहा, कार मूव हो गई, कार पोजीशन चेंज कर दी. अगर रोड के साथ कार भी आगे चले जाता तो आपको लगता नहीं कि, और अगर आप रोड में खड़े रहते तो आपको लगता है कि शायद कोई मोशन ही नहीं हुआ. एक एग्जांपल लेंगे और उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा. अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन. एक बड़ी बात कर लेते हैं. इतना बड़ा प्लेनेट है हमारा अर्थ, और ये सन के रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है. इट तो मोशन क्या हो रहा? ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे अर्थ है और अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है with respect to you can say sun or space. So this is it. This is said to be motion. An object is said to be in motion when it changes its position with respect to surrounding with passage of time. अच्छा, एक बात हुई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे सराउंडिंग के हिसाब से, सराउंडिंग के कंपैरिजन में, समय बीतने पर भी, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो मोशन का उल्टा हो जाएगा रेस्ट. सो लेट अस राइट दैट डाउन. इंपॉर्टेंट टर्म, रेस्ट. जनरली वी से दैट द रेस्ट मतलब हाँ भाई रेस्ट कर ले, आराम कर ले. मगर फिजिक्स में रेस्ट का मतलब होता है नॉट इन मोशन. ओके, सो विल राइट दैट डाउन इन दैट वे ओनली. व्हाट वी विल से, what we will say that an object is said to be when an object when an object does not changes its position, when an object does not
So when an object does not changes its position with respect to surrounding with the passage of time, then it is said to be at rest. See, this thing is very important. You have to understand this thing first, then only we can move forward. है ना? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम बोल रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल मी, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, समय बीता, मैं अपने आसपास की चीजों के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन चेंज नहीं किया, मैं यहीं का यहीं हूं, देन व्हाट इट विल बी कॉल्ड? इट विल बी कॉल्ड दैट आई एम एट रेस्ट. मैं वहीं पर रुका हुआ हूं, आई एम एट रेस्ट. और अगर पोजीशन चेंज कर लेता तो आई वुड हैव कॉल्ड इट इज इन मोशन. मैं कहलाता कि मैं मोशन में हूं. सो दिस इज इट, मोशन का उल्टा रेस्ट. Wasn't it? Motion का उल्टा रेस्ट. So this is the thing, two definitions which we have to understand first. Chapter का नाम है itself motion and rest. These two things we have to understand. I hope that you are noting it down because हम इसी तरीके से करेंगे, हम पढ़ते जाएंगे, साथ में उसके जो definitions and the things है उसको आप note down करते जाएंगे. So first of all, note it down. So now let us move to the next term. If you have not noted it down, you can pause as well as and note it down. So our next topic to understand, अब हमें समझ में आ गया कि क्या मोशन होता है और क्या रेस्ट होता है. ओके, रुका हुआ ऑब्जेक्ट आसपास की चीजों के कंपैरिजन में रेस्ट में कहलाएगा, और अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में कहलाएगा. और अब देखते हैं हम लोग कि कब जब एक ऑब्जेक्ट पे मोशन हो रहा है तो क्या क्या चीजें होंगी उसके साथ. पहली चीज जो होगी वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड. वो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा. हाँ या ना, सहमत हो? लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं यहां पे हूं, 2 सेकंड बाद मैं यहां पे पहुंचा, पोजीशन चेंज हो गई, मोशन हुआ. अब बात होती है कि और क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ दूरी तय हो गई. मैं यहां से यहां पे आ गया, हो सकता है 20 सेंटीमीटर दूर आया, 1 मीटर दूर आया, कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा मैं, इसलिए. तो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल को कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस, हाउ वी कैन डिफाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? वी कैन डिफाइन इट लाइक दैट, द लेंथ कवर्ड by an object, the length covered by an object in a given time. समय की बात करनी पड़ेगी, है ना, समय बीतता जाएगा. in given time is called distance traveled. डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ओके, जनरली भी हम लोग जब भी कोई चीजों टर्म को पढ़ेंगे ना फिजिक्स में, हम क्या करेंगे उसको ना किसी तरीके से शो करेंगे. शो करेंगे मतलब लाइक डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 मीटर, एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर की दूरी तय किया. इसको जल्दी से हमको लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, तो हम लोग उसको कैसे लिख देंगे? इस तरीके से लिख देंगे कि d इज इक्वल टू 5 मीटर. इसमें से d क्या है? d डिनोट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड. d जो है इस डिस्टेंस ट्रेवल को प्रदर्शित करता है. 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, शायद सीधा लिख दो d इज इक्वल टू 5 मीटर, 5 मीटर. ठीक, तो d डिनोट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ओके, d डिनोट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, d डिनोट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का यूनिट क्या हुआ? अब मैं आपसे पूछूं कि आपका वजन कितना है, तो आप बोलेंगे सर 50 किलोग्राम. आप दो चीज बता रहे हो मुझे, मैंने पूछा वजन, आप बता रहे हैं 50 यानी 50, किलोग्राम भी बता रहे हो, यानी कि 50 नंबर है और किलोग्राम यूनिट है.
50 बार एक एक किलो को आपने एक साथ बताया है ना, यूनिट, इसीलिए इकाई बोलते हैं उसे। तो ये यहाँ पर ये जो मीटर है ना, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की यूनिट है। ये मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड की यूनिट है। तो दो चीज लिखेंगे हम, ये क्या लिखेंगे इसी के आगे, इट इज डिनोटेड बाय, क्या चीज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड मतलब प्रदर्शित होता है, कैसे शो करते हैं, डिनोटेड बाय डी, लेटर डी, और इसकी यूनिट क्या है, इट्स एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट इज मीटर। मीटर बोलोगे मीटर, लिखोगे एम, नोट डाउन, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग सारी डेफिनेशन को इसी तरीके में लिखेंगे, क्या होता है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, और क्या उसकी एसआई यूनिट है। अब ये एसआई क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एसआई क्या होता है, सब इंस्पेक्टर नहीं, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। सी साइंस में आप जब भी कोई चीजों को पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा, जो टर्म्स को मेजर कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, उन नापने वाली टर्म्स को नाप सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ को, वजन को, समय को, बहुत सारी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। तो जो मेजर कर सकते हैं उन लोगों का एक नंबर होता है, वैल्यू होती है, और उसकी यूनिट भी होती है। जैसे कि यहाँ पे देखा हमने d इज इक्वल टू 5 मीटर, तो 5 उसका नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है, और 5 मीटर जो है उसकी यूनिट है। जैसे कि किलोग्राम यूनिट हुआ, मीटर यूनिट हुआ, सेकेंड यूनिट हुआ। तो ये जो बहुत यूनिट्स है ना, ये भी बहुत सारी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे, मीटर लेंथ को नापने के लिए हम लोग मीटर भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, माइल्स भी यूज करते हैं। अरे अमेरिका में जाओगे और आप बोलोगे मुझे यहां से वहां जाना है, कितना दूर होगा, तो उन लोग बोलेंगे अराउंड 50 माइल्स। आप परेशान हो जाओगे, मैं तो माइल्स में मतलब जानते ही नहीं। और अगर आप साइंटिस्ट होगे, आप कोई रिसर्चर होगे, आप कोई इंजीनियर होगे, या कोई आप साइंटिफिक फील्ड के कोई इंसान होगे जिसको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, तो देन यू वुड नॉट बी एबल टू डू दैट थिंग व्हेन यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ यूनिट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट। दैट्स व्हाई बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ मिले, उन लोगों ने बोला कि हम लिस्ट बना लेते हैं, ये यूनिट यूज करेंगे, कब, जब भी हम लोगों को इस चीज को पढ़ना होगा। तो बाकी सारे यूनिट्स यूज करते जाओ, मगर साइंस में जब भी हम लोगों इनको पढ़ना होगा, तो हम लोग इन चीजों को पैरामीटर मानेंगे, इन चीजों को स्टैंडर्ड मानेंगे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। अब आप सारे साइंटिस्ट एक साथ बैठे ना, तो एस आई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, एस आई इन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बनाए। तो लेंथ का क्या होता है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड या लेंथ का एस आई यूनिट होता है मीटर, याद रखना, इसीलिए हमने लिखा मीटर। तो ये था आज के लिए, क्या था, हमने जाना कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, और डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है। थोड़ी सी चीजें और समझेंगे और आगे हम लोगों को धीरे धीरे पता चलते जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी बात भी होगी, छोटी सी बात से स्टार्ट हुआ है। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग, मोशन एंड रेस्ट, एंड विल गो टू व्हाट नॉट, यू विल सी अबाउट द यूनिवर्स। पूरे बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले हम लोग। सो दिस इज इट फॉर टुडे, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।